नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए में क्या है प्रावधान? इस कानून के लागू होने से किन लोगों को दी जाएगी नागरिकता? इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्र सरकार देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया है। नागरिकता संशोधन का अन्य जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। यह कानून संसद के दोनों सदनों से 4 साल पहले मंजूर हो गया था। राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी। सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का The same stand that I took in Parliament, both when they introduced the bill and when the debate on the bill happened in the Lok Sabha. And I can tell you, I consider this morally and constitutionally wrong. Because the basis on which partition occurred was one country saying that religion is the basis of their nationhood, and they went off and created Pakistan. And Mahatma Gandhi onwards, all our other leaders, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, Dr. Ambedkar said, no, religion will not be the basis of our nationhood. Our nationhood is about our struggle for freedom was for everyone, and the constitution and the nation we create will be for everyone. On that basis, we created a constitution which you cannot discriminate against people because of their religion or their caste, their color, their language, whatever. You're a citizen of India, you have the same rights. This is the first time that into the principle of citizenship, you are finding a law being brought in that actually discriminates by excluding people of one particular faith. The rule is very simple. Anyone who has come to this country before the 31st of December 2014, who has sought refuge in this country from a neighboring country where they fear persecution, is eligible for citizenship. That's all that needed to be in the law. There was no need to specify which religions are eligible and thereby exclude people of only one religion. There is a pure communal message, a dog whistle as they say, a whistle to some people saying your communal agenda is what we are pursuing. That is unacceptable to us. It is clearly time, 4 years after the passage of the bill, just for their benefit in these elections. And I will say to you that I am fully in support of the decision of the India Alliance's Indian Union Muslim League to go to the Supreme Court against this. And I must say, if the India Alliance and the Congress Party come to power, we will withdraw this provision in the law beyond any shadow of a doubt. It's going to be in our manifesto. We will not support introducing religion into our citizenship and into our nation's life. This is wrong, and we certainly should not tolerate it in the interest of our country. बुद्धिहीनता के साथ आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी? हमारे पूर्व नेताओं ने जो धर्म के आधार पर अपने मोबाइल फोन से भी भारत का विभाजन कराया था, बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में उससे जो लोग दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं आ सके और इन अलग अलग देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए, वो हिंदुस्तान में जो 2014 से पहले के आए हुए हैं उनकी नरक की जिंदगी है। वहां से छोड़कर आ गए हिंदुस्तान में, यहां उनका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उनको नागरिकता देने का ये बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने, ताकि वो भी शान से अपनी जिंदगी जी सके, अपने बच्चों को पाल सके, उनको बड़ा कर सके। ये कम्युनल एक्ट है, इसका विरोध हम पहले से ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका विरोध में हमने असम में हो, हमारा असेंबली में हो, असम असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, हमारा पार्टी ने इसका विरोध किया है। हमारा पार्टी का सुप्रीमो ने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया है और हमारा पार्टी इसका फुल्ली विरोध करते हैं। इस एक्ट के जरिए एक कम्युनल फीलिंग्स पूरा देश में फैलाया जा रहा है और ये एक्ट जैसे ही इम्प्लीमेंट हो गया है, इसके जरिए खास करके असम का जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, ये टोटली खत्म करने का एक प्रयास है। इस एक्ट के जरिए ये खत्म हो जाएगा। असमीज का जो आइडेंटिटी है, असमीज का जो अस्तित्व है, उसको खत्म हो जाएगा। इसीलिए एज ए असमीज इसका हम विरोध करते हैं और विरोध करता रहूंगा। सवाल आपका ये है कि अभी जो चुनाव के पहले इन लोगों ने जो नियम ला दिया चाहिए, तो क्या आपके 4 साल और 3 महीने लगे हैं ये रूल बनाने में। 4 साल, दिसंबर 2019 में ये कानून बना।
ये बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कानून बनने चाहिए, रूल बनने चाहिए। नो एक्सटेंशन मांगा सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने, और 4 साल 3 महीने लगाए हैं। ये रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं। ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। अगर वो ईमानदारी से ये करते तो ये पहले 2020 में क्यों नहीं लाए? अभी ला रहे हैं, चुनाव के 1 महीने पहले ला रहे हैं। और ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का है, वो उसको छुपाने के लिए अभी ये सीए रूल की घोषणा की गई। ये बिल्कुल सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति है, फायदा उठाने की तो कोशिश करेगी, और खास तौर से पश्चिम बंगाल में और असम में इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पर मेरा सवाल यही एक ही सवाल है, 4 साल 3 महीने बाद आप क्यों ये लाए हैं? पहले क्यों नहीं लाए? जब कानून पारित हुआ, जो बिल पारित हुआ दिसंबर 2019 में, तो हमारी ये सरकार, मोदी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैं जल्द से जल्द काम करता हूं, कुछ ही देरी नहीं होती है मेरी सरकार में। तो 4 साल 3 महीने क्यों लगे हैं? ठीक है।